become the victor's brow. Hark the bursts of acclamation, hark those loud triumphant chords. Jesus takes the highest station. Oh, what joy the sight affords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. This is a worship song. The first stanza talks about man of sorrows. The second talks स्वागत है कि प्रभु ने परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए ऐसा एक अवसर दिया है। Thank you for the warm welcome that BDT has given me and the Gwalior Brethren Assembly. Thank you very much. और BDTI ने जो ऐसा अच्छा एक स्वागत मेरे लिए किया है और जो अवसर मुझे दिया है, as always, I enjoy the singing, and I enjoyed the singing today also. I saw two very small children singing at the beginning. It was so nice. When we sing, we are praising God, and God's very happy and glad to hear our praises. So I enjoyed it. Thank you. और जब गाना जब हम लोग गाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। और दोनों बच्ची जो आज गाना गा रहे थे, उन दोनों बच्चियों का गाना को सुन करके मैं बहुत खुश हो गया। All right, we will continue our study from the book of Malachi. और हम लोग जो मलाकी का पुस्तक है उसके और जाएंगे और अध्ययन करेंगे। Last week I did the introduction last Saturday, and last Sunday we started off on Malachi chapter 1, the first 5 verses. और पिछले दिन हम मलाकी का पुस्तक जो है उसका पृष्ठभूमि को देखे थे, और उसके साथ साथ हम लोग जो है पहला अध्याय का पहला वचन से 5वां वचन तक भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। In the first 5 verses, the Lord is speaking to God's children, or the Judean people who have come from exile, talking to them about His love. और जो पहला 5 वचन है वहां पर इज़राइल के विषय में प्रभु कहते हैं, और वो क्या करते हैं ना, वे लोगों को परमेश्वर कैसा प्रेम करते हैं, उस प्रेम के विषय में वो वहां पर बताते हैं। And the Lord is speaking through Malachi, reminding the children of Israel, or the Judean children who come from exile, about His love. He's reminding them once again how much He loves them. और मलाकी के जरिए परमेश्वर इस बात को इज़राइल के लोगों को याद दिलाते हैं कि वो इज़राइल के लोगों से वो कितना प्यार करते हैं। In a similar way, brothers and sisters, God loves you and me in a similar way. That is why He's talking to us through this the prophetical, the minor prophetical book Malachi. और ऐसे ही मेरे प्यारों, हमसे भी परमेश्वर बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और इस मलाकी का पुस्तक और उसके साथ साथ जो छोटे भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक है, उन भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक से आज हमें ये स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। While we start this, we're going to read 2 verses. First is Malachi chapter 1 and verse 2. We will read that. We will also read Romans 5 and verse 8. और मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन, और उसके साथ साथ रोमियो उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहोवा यो कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था। Romans 5 and verse 8. रोमियो 5 का 8 वचन भी पढ़ लेते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे
तभी मसीह हमारे लिए मरा। I asked for both these verses to be read, one from Malachi and the other from the New Testament, because both of them are relevant to us as believers. सो आप लोगों को मैंने मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन और उसके साथ साथ रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन, इस वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों को कहा। If you read in Malachi, the Lord is speaking to the Judean children, the people who have come from exile, and He's telling them how much He loves them. And in Romans, we see that Apostle Paul is reminding us that how much God has loved us with His great love in whatever condition we are. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मलाकी का पुस्तक में मलाकी के जरिए परमेश्वर इजराइली लोगों को याद दिलाते हैं कि वो कितना उनसे प्रेम करते हैं, कितना वो प्यार करते हैं। और उसके साथ साथ यदि रोमियो उसका 5वां अध्याय 8वां वचन में नया नियम में हम पढ़ते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर हम किस परिस्थिति में क्यों ना हो, उसकी प्रेम अपार है और वो अनंतता का प्रेम से आपको और मुझे प्रेम करते हैं। I hope you can see my screen, Sibir. Yes, I can see. All right. Yes, sir. Okay, so now this is what we were considering last week about the first two verses. We will continue and move on between today and tomorrow to finish the first chapter, hopefully, and God willing. Now, let's also read verse 3, Malachi chapter 1, and let's read verse 3. और पिछले दिन हम लोग इन वचनों को देख रहे थे, प्रभु का इच्छा होगा तो पहला अध्याय को आज हम लोग समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। आइए तीसरा वचन के और चलते हैं और तीसरा वचन को अध्ययन करेंगे। मलाकी पहला अध्याय तीसरा वचन। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल में गीदड़ों का कर दिया। All right. Now in verse 2 that we read some time back, we read two words, which is love and hate, about और Jacob. पहला अध्याय का दूसरा वचन में हम लोगों ने दो मुख्य बातों को हम लोग देख सकते हैं। एक तो प्रेम और दूसरा है नफरत। Now, with these two words, when we know the meaning of these two words, we know about love and we know about hate, which we all understand as the opposite of love. और हम लोग जानते हैं ये दो शब्दों को, एक तो प्रेम और दूसरा है नफरत। और हम लोग जानते हैं कि प्रेम और नफरत के विषय में क्या है, प्रेम का जो विपरीत शब्द है नफरत। Now here, as per the original language, in the original language, the meaning of the word hate here does not mean actually hate. It means it has a different meaning, which I'll explain to you. और यहाँ पर जो वचन है, एक पद है जो नफरत है, वह नफरत की बात है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो नफरत क्या होता है। ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल भाषा में कुछ अलग शब्दों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। The Lord is speaking and saying that I have loved Jacob, but Esau I hate. Now the meaning here, as per the original language of hate, is lesser love, not totally, but lesser love. That's the meaning of that word hate that is used in this second verse. और दूसरा वचन में एक शब्द जो है नफरत का शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि एसाव को थोड़ा कम प्रेम किया, ऐसा है उसका ओरिजिनल अर्थ। Or in other words, that I've rejected, I've not taken Esau. The meaning here means that I've loved Jacob more, but Esau I have not considered the same way that I have loved Jacob. That's the inference, that's the meaning. और यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, याकूब को तो मैंने प्रेम तो किया है, लेकिन जिस स्तर पर याकूब को मैंने प्रेम किया है, उतना ही प्रेम मैंने एसाव से नहीं किया है। उसका अर्थ यही है यहाँ पर दर्शाया गया है। So I've given you some references on the screen, starting from Genesis, Deuteronomy, Luke, and John. In all those references, when we read them, we will understand the difference between different kinds of love. और
ये जो वचन यहाँ पर दिया गया है, उत्पत्ति उसका 29 अध्याय और व्यवस्था विवरण लूका और यूहन्ना, तो ये प्रेम का जो स्तर है, कितना स्तर से प्रेम किया जाता है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। All right, for example, we'll just read one reference so that you understand the meaning of what the Lord is trying to talk to Jacob and to Esau. Now, in Genesis 29, verses 31, 32, 33, we read something very significant. Can we read those three verses? Genesis 29. आइए आइए हम लोग उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय उसका 31, 32 और 33वां वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ मुख्य बातें जो है परमेश्वर उनके विषय में कहता है। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहा कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझको यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम सीमोन रखा। All right, there you can see the difference between the way Jacob loved Rachel and Jacob loved Leah. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से याकूब ने लिया को प्रेम किया और याकूब ने राहेल को प्रेम किया। There's a significant difference there, and then you find that the Lord intervenes and the Lord helps Leah to bear two children. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बीच में आता है और फिर बाद में वो उस प्रेम को देखते हुए लिया के जीवन में 2 बच्चा देता है। In a similar way, brothers and sisters, in the verse 2, when the Lord speaks specifically about Jacob and Esau, that's the kind of difference he's making between Jacob and Esau in terms of his love and his preference for Jacob than Esau. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसी तरीके से परमेश्वर किस तरीके से प्रेम करता है, किस स्तर पर वो प्रेम करता है, और एसाव को थोड़ा कम प्रेम किया और याकूब को परमेश्वर ने ज्यादा प्रेम किया था। So the Lord is speaking to them and he's reminding them of their antecedents. He's talking to them about their former fathers, their forefathers, reminding them about Jacob and Esau. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजराइल के लोगों को इस बात को याद दिलाते हैं कि उनका जो आदि पिता थे वो याकूब और एसाव के बारे में इन लोगों को याद दिलाते हैं। Isaac had two children. The first one was Esau and the second was Jacob. और एसाया का 2 बच्चे थे, एक तो एशा और दूसरा है याकूब। And from Esau come the Edomites. The descendants of Esau are the Edomites. The descendants of Jacob are the Israelites. और एसाव से जो इदोम के लोग हैं, इदोम के गोत्र वाले हैं, उस गोत्र आते हैं, और याकूब से इस्राएल आता है। Now, the Lord is reminding these people who have come back from Israel, particularly come back from Babylon, particularly these Judeans. He is reminding them of their forefathers and how he treated them, his antecedents, and he wants to call to their memory the way in which he has chosen them and loved them. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहूदा के गोत्र के लोगों को जो बाबिल देश से वो लोग वापस आए थे, उन लोगों को उनका जो पूर्वज है, उनका आदि पिता लोग हैं, उन लोगों का प्रेम के बारे में वो इजराइल के लोगों को याद दिलाते हैं, बस स्मरण दिलाते हैं कि वो किस तरीके से उनसे प्रेम किया था। As per the Jewish custom, the first one who is born receives the birthright. Birthright meaning the blessings from his father, the forefathers. It is the most coveted blessing that the firstborn can receive from the father. So Esau was supposed to receive that blessing. That's the firstborn's blessing, birthright. और हम लोग देखते हैं एसाव और याकूब के जीवन में जो व्यक्ति बड़ा होता है उसका पिता का आशीष व पहला स्थान को वो पाता है, और उसी के अनुसार
कि एसाव और याकूब के बीच में एसाव को क्या मिलना चाहिए? उसका पिता का जो बड़ा बेटा का दर्जा और उसके साथ साथ जितने सारे आशीषें हैं वो आशीषें उसको मिलनी चाहिए थी। Jacob was the second one. So Jacob, the second son. They were twins, but he was born a few minutes later than Esau. So Jacob had no right at all. He had no right to this birthright that is given to the first one. सो हम लोग देखते हैं कि याकूब कुछ समय बाद कुछ मिनट के बाद जो है याकूब का पैदाइश हुई थी और ऐसा बड़ा था। और जो पिताजी का जो जन्म गत आशीष जो मिलती है बड़ा बेटा का जो आशीष मिलती है याकूब का पाने का कोई योग्यता कोई हक नहीं थी। But you see significant in verse 2, in Malachi 1 and verse 2, the Lord is mentioning that I have chosen Jacob. You see, that's a very special word. It's this very special statement the Lord is making as far as Jacob is concerned. सो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है ना, याकूब को चुनता है। और याकूब को जो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर याकूब को बड़ा बेटा का दर्जा देने के लिए वो चुनता है। In verse 3, we read that I have rejected his brother Esau. I have devastated his whole country. That's what we read in verse 3. और तीसरा वचन में हम इस बात को देखते हैं, ऐसा अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला है। Now, the Edomites were permanently ruined. जो ईदम के लोग हैं उन लोगों को संपूर्ण रीति से नष्ट किया गया है। They were the unchosen ones. They were never chosen. और उन लोगों को वे चुने हुए लोग थे, परमेश्वर कभी उनको नहीं चुना। And brothers and sisters, that status had never changed right from the time that they were born or before they were born. The Lord chose Jacob in the womb. That status never changed in the case of Esau. He was not chosen, he was not preferred, and that remained, brothers and sisters, even till today. तो हम समझ सकते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर ने क्या है ना याकूब को चुना। कहां से? मां का गर्भ से ही याकूब को परमेश्वर ने चुना था और एसाव को परमेश्वर ने उजाड़ नहीं चुना था और उसके गोत्र के लोगों को भी नहीं चुना। आज तक भी वे लोग ऐसे ही हैं, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना है। Significantly, in the case of Jacob, God had chosen Jacob, and because of Jacob, the Israelites, that status never changed. They are still the chosen ones even till date. और महत्वपूर्ण तरीके से और दूसरे तरीके से हम लोग यदि देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि याकूब को परमेश्वर ने चुना और आज तक भी वो चुने हुए गोत्र के समान आज भी वे लोग चुने हुए हैं। Brothers and sisters, Apostle Paul is reminding us of this. Let's turn to Romans chapter 9 and read verses 10, 11, 12, and 13. Apostle Paul is reminding us of this antecedent, this interesting incident that happened. सो मेरे प्यारो, रोमियो उसका 9वां अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है इस बात को याद दिलाते हैं। आइए उस वचन को हम लोग पढ़ करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। रोमियो उसका 9वां अध्याय 15 और 16 वचन। 10, 11, 12 and 13, brother. सॉरी, 10वां, 11 और 12वां और 13वां वचन। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ऐसो को अप्रिय जाना। Brothers and sisters, look at verse 13. Have you read it? Have you finished verse 13? हाँ, yes. All right. Verse 13, Apostle Paul is quoting from Malachi. और 13 वचन को प्रेरित पौलुस जो है मलाकी का पुस्तक से लेते हैं। He's saying this according to the scriptures, I loved Jacob, but I have rejected Esau.
और वचन के अनुसार वहां पर हम लोग देखते हैं, मैंने याकूब को प्रेम किया है परंतु एसाव को अप्रिय जाना है। When both the twins were in the womb of Rebekah, there was a kind of a war or a tussle that was going on in her womb with both the twins, both the children inside. और जब वे दोनों माँ के गर्भ में थे, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक संघर्ष चल रही थी। And then she went to inquire of the Lord, why is this happening? Why is there so much of disturbance in my womb because of both the kids? और उसके बाद जो है वो जाती है परमेश्वर के पास और वो कहती है कि मेरे पेट में ऐसा क्यों हलचल मची है। And if you और प्रभु उसका जवाब देता है, तुम्हारे पेट yes, में and दो if, बच्चे हैं। and if you remember, he very specifically says there are two nations in your womb. और आपको यदि इस बात को याद होगा तो परमेश्वर वहां पर ऐसा कहता है, आपके पेट में, आपके गर्भ में दो जाति हैं, जो दो देश हैं। Brothers and sisters, we know this very well, but I wish to remind you once again, when the Lord spoke to it, what did he say? He said, the younger one will rule the older one. That's what he said, even before the babies were born. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों, इस बात को तो आपको पता ही है, लेकिन वे दोनों पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने इस बात का भविष्यवाणी कर दी थी कि वो छोटा बेटा बड़ा बेटा के ऊपर अधिकार जता करके शासन करेगा। Brothers and sisters, it may appear to be mysterious as far as how God's choices. These boys who were born, they were in the womb. They did not do any good or bad. Nothing was done. They are just babies. They are just children. But look at God's choice, how he had chosen them even before they were born. और देखिए मेरे प्यारों, ये दोनों बड़े भी नहीं हुए, पैदा भी नहीं हुए, फिर भी उनका पेट से ही वे दोनों जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने इस बात का भविष्यवाणी कर दिया था। What is significant is they did not do anything good or bad. They were not even born to do anything good or bad. Yet before that, God had chosen Jacob. सो मेरे प्यारों, वे लोग पैदा ही नहीं हुए थे, उन लोगों को अच्छाई भलाई क्या है उनको पता ही नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने वो जो छोटा बेटा है उसको परमेश्वर ने चुना था मेरे प्यारों। All right. Once a lady came to C.H. Spurgeon and she asked this question. I cannot understand how God how God said that I hate Esau. और एक स्त्री स्पर्जन के पास आकर के वो कहती है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है कि एसाव को परमेश्वर नफरत में करता हूं करके कहा, इस बात कैसा हो सकता है, ये कैसा संभव है करके वो पूछती है। To which Sir Spurgeon replied to this lady and said, that is not my problem. My problem is, what I'm trying to understand is how God would love Jacob. और वो मेरा समस्या नहीं है, परमेश्वर ने एसाव को क्यों प्रेम नहीं किया वो मेरी समस्या नहीं है, लेकिन मेरा तो समस्या ये है कि याकूब को परमेश्वर ने क्यों प्रेम किया। And so that love which God showed towards Jacob came down to their descendants. So the entire Israelites were the chosen ones, the chosen generation, the chosen children of God. सो मेरे प्यारो, वो याकूब को जो परमेश्वर ने प्रेम किया था, वो प्रेम क्या हुआ न, पूरा उनके जाति में उनके बच्चों से बच्चों तक जो है वो प्रेम पीढ़ी से पीढ़ी तक लगा रहा, और उस चुने हुए वंश के रूप में वे लोग जाने गए। The descendants that came from Jacob, they were captured by the Babylonians. Similarly, the descendants that came from Esau, they were also captured by the Babylonians. Both were in captivity. और हम जानते हैं कि एसाव का जो पुत्र है, उनसे जो आई है गोत्र देश जो बनी हुई है, उन लोगों को भी बाबुल के राजा जो है उन लोगों को बंदी बना करके लेके गया। उसके साथ साथ याकूब के गोत्र से जो पैदा हुए हैं बच्चे, उसमें से भी जो है उन लोगों को बाबुल का देश के लोग आकर के गुलाम बना करके लेके गए। But God restored the children of Israel. God brought them from captivity. God brought them from exile, the children of Israel, and brought them back into their land. मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है उस बंधी अवस्था से छुटकारा दे करके उनको अपने देश में लेकर के आता है।
The lives of Esau and Jacob are a lesson to you and me, brothers and sisters, today. मेरे प्यारे भाई और बहनों, एसाव और याकूब का जीवन से आपके और मेरे लिए संदेश है, मेरे लिए सीख है मेरे प्यारों। God chose us, as I shown on the screen there. God chose us not because of our works. और जो स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे चुनता है हमारे कर्मों की वजह से नहीं। God chose us not because of how we look, how handsome and beautiful we look. It's not because of that. परमेश्वर हमें चुनता है इसीलिए कि हम बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। God chose us not because of how we have qualified ourselves, what we have studied, what our employment is. It's definitely not because of that. मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको और मुझे चुनता है इसीलिए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो पढ़ा लिखा व हम जो शिक्षित हैं इसीलिए परमेश्वर चुनता है, ऐसा नहीं है। Brothers and sisters, God chose us because of His love for you and me. We are His chosen generation, a peculiar treasure, a holy nation, isn't it? मेरे प्यारों, आपको और मुझे वो परमेश्वर चुनता है इसीलिए कि वो आपको और मुझसे प्रेम करता है। हम जो है राजकीय वर्ग बन गए हैं, राजकीय जाति बन गए हैं, उसके प्रजा बन गए हैं, उसके प्रेम के वजह से, है कि नहीं? That is why when the Lord is speaking to the Judeans, the ones who came from exile, His children, He's talking to them in the first three verses, reminding them of His love, and they're asking us, and when they ask them, how have you chosen us? He says, I have loved you. और यहाँ पर हमको याद दिलाता है कि जो है क्यों हमको चुना है, क्यों उनसे चुना है। तो वो इसीलिए एक ही बात को वो कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। He chose Israel not because of their qualities. We all know who Jacob is, not because of his qualities, but because of his love for them. मेरे प्यारों, परमेश्वर जो है ये उन लोगों को चुना था, उनका जो कोई अच्छाई नहीं थी। याकूब के विषय में हम जानते हैं, याकूब का जीवन में कोई अच्छाई नहीं था, फिर भी याकूब को और उन लोगों को परमेश्वर ने चुना क्योंकि उनसे वो प्रेम करता था। I wanted to ask one question to all of you. I think those who attended the first two classes that we took on Malachi, it's a very simple question. I wanted to do it at the beginning, but as I read this, I thought of it just now. Just one very simple question. Can I ask you? Yes, uncle, why not ask? Okay. Now, last time when I introduced, I said this whole book, Malachi, these 4 chapters are in a question and answer model. और मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले मैंने 2 क्लासेस लिया था और इस बात को मैंने बताया था। यहाँ पर सवाल भी है और जवाब भी है। Now, how many questions did these people ask the Lord? I specifically mentioned this. Do you remember that? और कितने सवाल इन लोगों ने पूछा था, आप लोगों को मैंने बताया था, क्या आप लोगों को याद है? 7 questions. Very good. Very good. Thank you. Thank you. That's very nice. I just wanted to tinkle your memory just to see if we remember that. I'm not here to ask you any questions because I'm not perfect. I'm not knowledgeable, but I just wanted to check that these are very basic. So just wanted to check our understanding. Thank you very much. So there are 7 questions which the Judeans, the children of Israel who were in exile, came back. They asked the Lord 7 questions, and the Lord patiently answers and gives them answers to all the 7 questions. And that is what we find in all the 4 chapters of Malachi. So मेरे प्यारों, हम लोगों ने पिछले दिन इस बात को देखे थे कि वो इजराइल के लोग जो बाबुल देश से बंधुआई से वे लोग आए थे और वे 7 सवाल को पूछते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े धैर्य और धीरज के साथ उनके सवालों का जवाब को वो देते हैं। All right, now let's read Malachi 1 verses 4 and 5. आइए हम लोग मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 और 5वां वचन को पढ़ लेते हैं। एमोद कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर कर बसाएंगे। 4 and 5. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं
ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल के सिवाने की परली और भी बढ़ता जाए। You see, in both these verses, the Lord is distinctly saying about Esau, and he says that they may try to rebuild, but I will demolish. Their country will be known as the land of wickedness, which means they were never chosen after he had chosen Jacob. So that choice by which the Lord chose Jacob remained the same. Nothing changed as far as the Edomites or Esau's descendants were concerned. That comes out in verse 4 very clearly. So चौथा वचन में हम बहुत महत्वपूर्ण बात को देखते हैं, जो एसाव का वंश से जो पैदा हुए, जो देश बना था, वो है एदम। उन लोगों को परमेश्वर कहता है, एदम कहता है कि मैं उजाड़ भी देने से मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन प्रभु कहता है तुम बनाओगे तो और भी मैं उजाड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं चुना था, और परमेश्वर ने किसको? ना याकूब को चुना था। The status that you see, which I put up on the screen, God's assurance of his election, not only for the children of Israel, but to you and me. His children are chosen for eternity. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु मेरे प्यारो, आपको और मुझे जो है उसने चुना है। ये चुना जो है परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, वो कैसा? अनंतता के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है मेरे प्यार। Another significant thing is his children, God's children, be it the Israelites or be it you and me, we are chosen even before we existed. और परमेश्वर का जो चुने हुए बात को हम जब देखते हैं, वो इज़राइल क्यों ना हो या फिर हम क्यों ना हो, हमारा अस्तित्व होने से पहले, हम अस्तित्व में आने से पहले ही परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। And you know what is the basis of God choosing us? As we have seen earlier, it is not our good. It's not anything that Israelites were good or Jacob was good. It was his choice, God's choice. What a great privilege, brothers and sisters, that you and me have and Jacob and his descendants had. ओके, हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर का चुनने का वजह क्या है? परमेश्वर का चुनने का वजह यह है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हमारा कोई खूबी, हमारा कोई सुंदरता या हमारे कोई धार्मिकता, हमारे कामों के वजह से परमेश्वर ने नहीं चुनता, बल्कि परमेश्वर अपना खुद की इच्छा के अनुसार वो आपको और मुझे चुना है। The God's people, when they returned back from Babylonian captivity, when they came back, and when Malachi was writing this letter, they had not seen the fulfillment of God's promises. The children of Israel had not seen, or the Judeans had not seen the fulfillment of God's promises. और हम लोग जब देखते हैं कि वो जब लोग यहूदा के लोग जो वे लोग बाबुल से उस बंधुआई से छुड़वा करके जब आए थे, तो वे लोग उस परमेश्वर का प्रेम को अभी तक देखा नहीं है। They had not seen, because all the earlier prophets like Ezra and Nehemiah and all the others had, and Haggai, Zechariah, they all said that he's going to come back, the Messiah is going to come back, everyone, all the Jews, all the Israelites together are going to conglomerate, they're going to be in one place, and he's going to set up his kingdom. That was what was prophesied, but nothing had happened. And this is something which was on the top of the mind of these people, and that was worrying them. सो मेरे प्यारो, वे लोगों के मन में एक ही आकांक्षा था, एक ही इच्छा थी। क्योंकि एजरा के जरिए, नेहमिया के जरिए, हगाई के जरिए जो है भविष्यवाणी की गई थी कि एक महान राजा आएगा, इजराइल के लोगों को एकत्रित करेगा, अपना राज्य, अपना साम्राज्य को वो स्थापना करेगा, लेकिन अभी तक ये हुआ ही नहीं है, इसीलिए वे लोग द्वंद्व में पड़े हुए हैं। What was in their mind is that Jerusalem will be the place where all the Jews will conglomerate, and the Lord is going to reign there. That is going to be the kingdom. But that is far from happening. Although these people came back from exile, they did not see that happening. That was discouraging
these people, the Judeans. और हम देखते हैं कि उनका आकांक्षा और इच्छा थी कि वो मसीहा आएगा और उनका जो राज्य को स्थापना करेगा, उसका राज्य का जो है महान जगह, जो कैपिटल कौन सा होने वाली है, यरूशलेम होने वाली है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, इसीलिए वे लोग सबके सब द्वंद्व में पड़े हुए थे। All right. Brothers and sisters, does this not happen to us? Are we also not in a similar kind of a situation now? क्या वर्तमान में ऐसे परिस्थिति में आप और मैं है कि नहीं मेरे प्यारो? We expect a lot of things to happen. Some things that happen in our lives we don't understand. We are not able to fathom why are such things happening in our lives. मेरे प्यारो, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। बहुत विषय होता है, उस बात को हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत विषय नहीं होता है, उस बात को भी हम लोग समझ नहीं पाते, उसको तुलना नहीं कर पाते हैं मेरे प्यारो। The children of Israel could not see, as you see in the screen, the children of Israel could not see God's promises happening in their lives. It was not visible. They were not able to experience it. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो इजराइल के लोग, जो इजराइल के बच्चे थे, इजराइल के लोग जो थे, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं थी, वो प्रतिज्ञाएं अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस बात को अपने जीवन में वे देख नहीं पा रहे थे। The situations were not changing. The environment was the same. The circumstances had not changed. और वहां की परिस्थिति अभी कोई बदलाव नहीं है, वहां की माहौल भी बदली नहीं है, उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। Improvements were not happening. Nothing appears to be getting better. और कोई अच्छाई होने का कोई संभावना दिख नहीं रहा है। आगे जा करके कोई अच्छाई होगा, इसके बाद कभी कोई संभावना दिख नहीं रहा है। All what they were seeing was exactly opposite to what they were expecting to happen when they came back from exile. और जब वे बंधुआई से वापस आए थे, जो घटना होने वाली थी वो घटना हुई नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में आकांक्षा होकर के रह गया है। It is under these things, it is under these circumstances that the children of Israel or the Judeans, the Lord was writing to them, talking to them about love, and he's wanting to build up their faith. सो मेरे प्यारो, ये जो माहौल है, ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देख करके उनको इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा था कि वे उनसे प्रेम कर रहे हैं, वा करते हैं, और ये सब कैसे ना उनके जीवन में विश्वास को जगाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। Brothers and sisters, I want to pause for a moment here and then mention to you all the points that I mentioned here on the screen, which is very, very relevant to you and me today. सो आज आप लोगों को थोड़ी देर यहाँ पर रुकवा करके मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में ऐसे ही महत्वपूर्ण बात को कहना चाहते हैं। We may be at a point when we don't see things happening the way it should happen in our lives, be it our family lives, our individual lives, our life of work or business or church. We don't see things happening the way it should happen. सो मेरे प्यारो, ऐसा परिस्थितियां आती है जैसे कि काम बा हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है वैसा होना चाहिए नहीं होता है। हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे विश्वास जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हम जो बाहर नौकरी या फिर कोई व्यापार के जीवन में भी जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। If that is the case that we are in, brothers and sisters, we need to hold on in faith that God is working. और मेरे प्यारो, ऐसा है यदि है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें मजबूती से परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को पकड़ करके रखना पड़ेगा, ताकि जो है परमेश्वर उस कार्य में कार्यरत हो और परमेश्वर कार्य करे। By faith, we must believe that things are moving and working according to His plan. और मेरे प्यारो, विश्वास के अनुसार हमें विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के अनुसार हमें यकीन करना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना के तहत सब घटनाएं हो रही है। In faith, we must believe and continue that He is directing our life.
और विश्वास के जरिए हमें यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे सभी कर्मों में वो ही हमें मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। Brothers and sisters, the people in the time of Malachi had lost their faith, and because of which a lot of things were happening, and that is why the Lord had to write that message in Malachi. सो मेरे प्यारो, जो लोग बाबुल देश से आकर के यहाँ पर इजराइल रह रहे थे, ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे परेशानियों के सामना वे लोग कर रहे थे, इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को इन बातों को लिख करके याद दिला रहा है। And so the lesson for you and me from that prophetical book is that we should hold on to faith. In faith, continue and know that God is working. He is working in our lives. We may not be able to see it, but God is working, and there will be a time that we will be able to see what the Lord is doing in our lives. और भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक से आपको और मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है मेरे प्यारो। विश्वास के अनुसार हमें विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा, और उस विश्वास को मजबूती के साथ पकड़ करके हमें विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। Faith is a very common word. We as believers, we know what faith means. We use this word very, very often. और एक विश्वास एक साधारण शब्द है विश्वासियों के लिए। ये विश्वास क्या होता है कि इस विश्वास को हम आमतौर पर हमारे जीवन में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। But in a situation when we lose focus on the day-to-day things because of the environment, because of the things that pressurize us, we lose our faith. We do things in a hanky-panky way. We do things in such a way that others will think that these people have no God, these people have nothing. This is where faith kicks in. This is where faith has to come into play. सो मेरे प्यारो, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम कुछ कार्य को करते हैं तो उस कार्य जो है क्या होता है, विश्वास के अनुसार नहीं होता है, हम उलट पलट तरीके से करते हैं। जब बाहर के लोग आपको और मुझे उस काम को करते हुए देखेंगे तो वे लोग ये समझते हैं कि इनके जीवन में कोई परमेश्वर है नहीं। ऐसे परिस्थिति में आपके और मेरे जीवन में विश्वास कार्य करना बहुत आवश्यक। Many times haven't we wanted to ask this question, why Lord? Why are you allowing this in my life? Why do I have to go through this? I'm your child. I'm working for you. I'm toiling for you. Why do I have to go through all this? Many times these questions come to our mind, is it not? बहुत बार ऐसे सवाल आपके और मेरे जीवन में आते हैं मेरे प्यारो कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैं तेरा एक बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तेरा विश्वासी हूं, तेरे काम को मैं करता हूं, मैं तेरा दासी और दास हूं। ऐसा हम लोग बोलते हैं, मैं तो तेरा बच्चा हूं, फिर भी मेरे जीवन में ऐसे समस्या, ऐसा परेशानियां क्यों आता है प्रभु? ऐसा करके हम सवाल करते हैं। But have you noticed one thing? God seldom answers that question, why Lord, why? He does not answer that question. सो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि इस सवाल का जवाब को वो नहीं देते, कम ही देते हैं। क्यों प्रभु, क्यों मेरे जीवन में ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब प्रभु नहीं देता है। You know why God does not answer that question? और ऐसा सवाल को परमेश्वर क्यों जवाब नहीं देता, आपको पता है? All right, let's read Isaiah 55 and read verse 8 and 9. आइए ऐसाया पुस्तक उसका 55 अध्याय का 8वां और 9वां वचन को पढ़ लेते हैं। ऐसाया उसका 55 अध्याय 8वां और 9वां वचन। कोई नहीं है पढ़ने, मैं पढ़ूं? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। The answer is in this question, in the two verses that we read. Why God does not answer this question as to why Lord, why? Because, brothers and sisters, we do not have the ability to understand God's plan. सो मेरे प्यारो, क्यों प्रभु, क्यों
इस सवाल का जवाब जो है इन दोनों वचनों में हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर का जो विचार है उस विचार को आप और मैं समझ नहीं पाते। This verse specifically says his thoughts are nothing like your thoughts. His ways are far beyond anything that you can ever imagine. Now, if that is the case, how can we understand when God tries to explain why this and this has happened in our lives? सो मेरे प्यारो, इस वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का विचार हमारे और आपके विचार से बहुत अलग है, समान नहीं है। और जो है परमेश्वर की गति और हमारी गति एक सी नहीं है। And verse 9 says, as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. Our thoughts, our ways, God's ways are so much higher. How can we ever understand, even if God tries to explain that to us? सो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की जो विचार है, परमेश्वर की जो गति है, बहुत ही ऊंचा है मेरे प्यारो। हमारा सोच और विचार अलग है मेरे प्यारो, और परमेश्वर का बहुत अलग है। जैसे कि धरती से आकाश जितना ऊंचाई है, उतना ही उसका सोच और विचार में अंतर देख सकते हैं मेरे प्यारो। What do you see on the screen? आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? I've shown you a picture. मैं आपको एक चित्र यहाँ पर दिखा रहा हूं। Can anyone see it clearly? कोई व्यक्ति इसको साफ तरीके से देख सकता है? It's a glass, and if there is a glass, you can see through it very clearly. But this glass is moist, and there is the formation of moist on the glass, and because of which you cannot see what's on the other side. मेरे प्यारो, ये एक शीशा के चित्र है। वो शीशा क्या है ना, शीशा होता है तो साफ साफ आप जो है इस साइड से उस साइड आर पार देख सकते हैं, लेकिन इसमें धुंधलापन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो नमी है यहाँ पर, उस नमी के कारण जो है आप साफ तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। Now let's read 1 Corinthians chapter 13 and verse 12. और आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 12 वचन को अभी पढ़ लेते हैं। 13 and verse 12. पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 12वां वचन। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। We cannot see things clearly, but God knows our life. God is seeing our life. God is shaping our life. God is allowing certain things in our lives for our good because He always loves us. That's what we read in verse 1. I've always loved you, is it not? मेरे प्यारो, बहुत सारे बार क्या होता है कि हम साफ तरीके से नहीं देखते, लेकिन वो परमेश्वर सब कुछ वो देखता है। वो साफ साफ आपको और मुझे देखता है, और हम ऐसा कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? प्रभु यही सवाल का जवाब देता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और पहला वचन में हम लोग वही पढ़ रहे थे, मैं तुमसे अनंतता का प्रेम करता हूं। And so coming to that question, what is faith, brothers and sisters? What is faith? और उस सवाल का जवाब में हम लोग आते हैं, विश्वास क्या है? When we cannot see what is going on in our life. और विश्वास ये है कि जिस बात को हमारे जीवन में हो रहा है लेकिन उसको देख नहीं सकते, And we cannot understand how things are going to happen. और हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में कैसे वो सब होने वाला है। Now that is what faith is. Now faith also is that we rest peacefully in the sovereign power of God. मेरे प्यारो, विश्वास का मतलब वो है, विश्वास का मतलब ये भी है कि जो सर्वभौम परमेश्वर के हाथों में हम शांतिपूर्ण तरीके से जो रेस्ट लेते हैं, विश्राम लेते हैं, उसको विश्वास कहते हैं। And we trust in Him. और हम क्या करते हैं? उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं। Let's read Romans chapter 11. आइए रोमियो का पत्री उसका 11 अध्याय verses 33 to 36.
और 33वां अध्याय से 36वां अध्याय तक व 36वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। Romans 11, 33 to 36. रोमियो उसका 11वां अध्याय 33 से 36वां वचन तक। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किससे जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। You read all the 4 verses. Yes. Now you see verse 33 says, how impossible it is for us to understand his decision and his ways. और यहाँ पर हम लोग 33वां वचन में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। Over the last 2 weeks, I've known of 2 dear ones who went to be with the Lord and who were close to me and who were young. Now, as I prepared for this message, the Lord was speaking to me how impossible it is for us to understand his decisions and his ways. For the bereaving family, it's very difficult to understand. And so our faith gets bolstered, or our faith gets built up, knowing that we have a great and mighty and sovereign God that we all serve and who loves and cares for us. So मेरे प्यारो, पिछले 2 सप्ताहों में जब मैं इन वचनों को तैयार करते समय मेरा 2 जो बहुत करीब मित्र लोग इस संसार छोड़ करके चले गए, वो जवान थे। और वो लोगों के विषय में मैं जब सोचता हूँ, वो परमेश्वर के विषय में जब मैं सोचता हूँ, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान कितना गंभीर है, उसकी जो विचार कैसा अथाह है, उसकी मार्ग कैसे अगम है, इस बात को मैं सोच रहा था। They had no sickness, they had no ailments, but all of a sudden the Lord took them to be with him. We cannot question that, but we can rest in his word that how impossible it is for us to understand his decisions and his ways. Verse 33. That's what we read. मेरे प्यारो, हम क्या देख सकते हैं? ना वे कोई उनके जीवन में कोई बीमारी थी, ना वो कोई दुर्बल थे वे लोग, फिर भी उन लोगों को परमेश्वर ने उठा लिया है। मेरे प्यारो, उन परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान कितना अगम है, उसकी मार्ग कितना अथाह है, हम समझ नहीं सकते। लेकिन हम क्या हो सकते हैं? विश्वास में मजबूत होकर के आगे बढ़ सकते हैं। And in verse 36, we read, everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory. All glory to him forever. Amen. मेरे प्यारो, 36वां वचन में हम लोग इस बात को देखते हैं, क्योंकि सब कुछ उसकी ओर से आता है, उसी के द्वारा ही होता है, और सब कुछ उसी के लिए होता है, और ये सब कुछ महिमा उसको ही युगान युग तक मिलती रहे। आमीन। Brothers and sisters, when we say amen, what does it mean? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब आमीन का शब्द हम लोग कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? In our personal life, when we say amen, it means we trust him and we surrender everything at his feet because he is Lord of Lords. He is sovereign in everything. मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन में हम लोग आमीन कहते हैं, उसका मतलब प्रभु के ऊपर संपूर्ण रीति से हमारा भरोसा होता है, और प्रभु के जो पांव के नीचे व चरणों में सब कुछ हम लोग समर्पण कर देते हैं। In our lives as a transformed believer, this is what we must always keep in mind, what I have shown you on the screen. एक परिवर्तित विश्वासी के जीवन में ऐसा होना चाहिए जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं। First of all, is stop trying to fix the problem ourselves. सो मेरे प्यारों, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि अपने ओर से ही समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास मत करें। Second, stop trying to figure out why this and this happened.
और इस बात को भी आप करना बंद कर दे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को सोचना और विचारना बंद कर दे। These two things we stop and we start two different things. और ये दो चीजें जो है हमारे जीवन में बंद करना पड़ेगा और दो चीज को हमारे जीवन में शुरू करना है। We start trusting God for everything that happens in our lives. और हम क्या करेंगे ना, हमारे जीवन में जो कुछ भी संभव जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उसके लिए परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। And we start laying everything at his feet because he's the sovereign God. He is absolute control. तो मेरे प्यारो अभी क्या करेंगे ना, उस परमेश्वर के चरणों में सब कुछ हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि वो ही सर्वभौम परमेश्वर है, सबका वो नियंत्रण करता है। Brothers and sisters, that is the message which God was giving to his people who came back from exile, who had lost faith, who were doubting his love. The Lord speaks to them in the first 5 verses. This is what he communicates to his children. तो मेरे प्यारो ये जो पहला अध्याय का पहला 5वां वचन से, जो बाबुल देश से बंधुआई से वे लोग जो के छुटकारा पा करके जो आए थे, यही संदेश उन लोगों को वो परमेश्वर देना चाहता था। I hope the Lord is speaking to us and we have got our lessons from this as much as God spoke to his chosen children through Malachi. I hope the Lord has spoken to us today and we've got our lessons and the message from the Master. So मेरे